because we have this recording option. अगर मैं recordings बिल्कुल डालनी बंद कर दूँ तो more and more people will start taking live, but because everyone knows that we have the option of recording, so students feel that why there is a need to attend it live. But I would definitely recommend everyone, like apart from the video program students, it's okay because you have chosen the video, so it's okay that you will be going as per your own like time and flexibility. But for the videos plus live students, I would recommend every one of you कि if possible try to take it live, because we are starting with questions discussion. एक बार जैसे ही मैंने क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर दिया ना, like you will feel like कि we are discussing lots and lots of things in our classes, so it is definitely better to attend it live, because वैसे भी जब आप लाइव ले रहे हो तो आपके पास अपने आप को अनम्यूट करके बोलने का राइट है, so you will be able to understand the questions well, you will be able to point out your thinking well. So would definitely recommend everyone to make it live, and we will be taking classes via this weekend, Saturday, Sunday, and we will be taking at the same time 7:30 a.m. to 9 a.m. So Saturday, Sunday, 7:30 to 9 would be the slot for CP1 students. So guys, before I start, just a quick introduction about yourself, and then we are good to start. So just quickly in your chat section only, quick introduction about yourself. Guys, be more active. I want active participation in the session. दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एग्जाम, सो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है. दिस इज नॉट एन इजी एग्जाम. एवरीवन नोज कि दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एग्जाम ऑफ योर एंटायर 13 एग्जाम सीरीज. सो यस, CP1 is difficult to crack if you are not paying attention, because I have seen basically that students are struggling with this exam, and there are some of the students who are able to clear exam in first attempt as well. My point of taking your introduction is just to understand that in which particular domain you are working in, first thing, and secondly, how many exams are you done with. Basically, this is the only point of taking your introduction, so that I can just understand how much effort would be required from your side as well for this particular exam. So if someone is done with CT series, तो we assume कि okay आपको basics clear है, and it's the theory portion that now you are left with. But we have lot of other students, जैसे आजकल क्या है, CS2 and CM2 have become very difficult to crack. So everyone knows this. So because CS2 and CM2 have become difficult to crack, so what students do is they immediately after clearing CM1, CS1, CB1, CB2, they directly go for CP1. तो इट्स ओके अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पा रहे हो एंड आपके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज बेसिकली आई डोंट रिकमेंड दिस ऑप्शन व्हेन यू आर डूइंग ग्रेजुएशन. बट इफ यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन and if you are working, and even if you are left with CS2 or CM2 and you want to go for CP1, you can go for it, provided that you have sufficient knowledge and experience in a particular domain. So it's up to you कि आप किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो. Otherwise, the point is that for this particular exam, what we require is that regular dedication would be required from your side. Definitely, मुझे 2 hours on a daily basis देना ही देना है. मतलब there is no escape for this regular dedication. So starting from now till April or May 2024. So we have everyone who is appearing
for April and May 2024, right? Is there anyone who has still not planned his or her attempt and they're confused ki whether I should go for April attempt or September attempt? Okay, May 2024 is same as April. Okay, so is there anyone who is still confused with respect to attempt? Because पहले तो हमें आपकी diet समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand that which particular attempt or which particular diet you are planning, so that accordingly targets will start coming to you, and accordingly you also know in your mind कि okay what is expected from my side. So guys, if you are appearing from April, so आपका IFOA specific content पे आपको ज़्यादा focus करना है. And if you are appearing for your May 2024 attempt, make sure that you are focusing on II specific content. There is a lot of difference in testing of this exam with respect to I and IFOA, and we have to be very clear with that. So let's just understand that how we will be proceeding and what is expected from your side. So first thing that you guys must have seen in your content browser is that we have core content lectures. So has everyone seen this? Even if you have not started going through these lectures, it's completely okay. But is everyone aware about this particular content which is there in our content browser? Because browser के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं. तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपको कैसे go through करना है, किस लेक्चर से स्टार्ट करना है, how you have to proceed. So यही स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है. सो एवरीवन हैज गॉन थ्रू कोर कंटेंट लेक्चर्स. देयर इज वन सेक्शन ऑफ कोर कंटेंट लेक्चर्स अपलोडेड इन योर ब्राउजर. गाइस बी क्विक. Everyone has seen this core content lectures. Okay, so what exactly is there in this core content lectures? Can anyone tell me this thing before I tell you okay, what's there in this core content lectures? I would like to know from your side. You can just unmute your mic and speak. There's no point of writing chat. अभी हम casual discussion कर रहे हैं. Try to make this lecture as casual as you can so that we can just understand कि what is expected from your side and how we will be proceeding. So feel free to unmute your mic and speak. Okay, so basically, yeah, yes. Okay, okay. So yes, in these core content lectures, I have tried to cover the entire core reading of yours in complete detail. That means if you guys want to skip your core reading, I can assure you you can skip your core reading because I have tried to cover everything in these core content lectures. So these are purely and purely only and only based on your core reading. सो को रीडिंग में हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं. सो इन लेक्चर्स में आई हैव ट्राइड टू कवर दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल. सो ऑल द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच कैन बी expected in exam are covered in these lectures. तो these lectures are basically forming your base. तो ये lectures क्या है? जैसे अगर आपके पास टारगेट आएगा कि let's suppose next weekend we have a class of chapter 8 to 10. तो what is expected from your side is कि आप 8 to 10 के content lectures देख के आओगे. So because if I repeat the same thing in the class कि assets market की हमने जो इतनी detailed discussion videos में करी हुई है, अब मैं दोबारा से अगर वही चीज रिपीट करूंगी तो इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज यू विल नॉट बी गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस लाइव सेशन. So in the live class, I would like to do lots and lots of other things apart from the content which is already discussed in quite detail. तो हम चैप्टर 8 to 10 की लाइव क्लास में इन कंटेंट लेक्चर्स के अलावा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. मे बी इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम कंटेंट लेक्चर आई विल टेक दोज डाउट्स, अदरवाइज वी विल बी फोकसिंग ऑन क्वेश्चन डिस्कशन. तो live class is for questions discussion. Monday to Friday, you have certain targets with respect to completion of your lectures.
Now this is for videos plus live. What about those students who are taking only videos? So आपके पास अगर only videos हैं तो you know that from Monday to Friday you have to complete your, you have to pace up on your videos, and as soon as on we will be uploading the live session which took place on weekends. You can just go through that particular session, but yes, it takes time to edit, it takes time to upload the sessions. So like let's suppose अभी आज जो class चल रही है, तो we just make sure कि when we have 2-3 classes to upload तो वो upload तब होती है. तो आपका एक जो common question रहता है कि मैम अगर ये आज की class हुई है तो ये हमें कब visible होगी, तो I'm telling you in the first lecture itself कि whenever we have 2-3 classes to upload, the technical team uploads at that particular point. So for example, if अगर हम आज इस weekend की बात करें तो we have just one session this weekend, and then we will be having targets, and we will be having 2 sessions from next weekend onwards. तो बाय नेक्स्ट संडे तक हमारे पास 3 क्लासेस हो जाएंगी अपलोड करने के लिए. तो मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट वीकेंड वाला मंडे ट्यूसडे तक आपकी ये तीनों क्लासेस आपके ब्राउजर पे अपलोड हो जाएगी. So if you are making it live, it would be better because आप पूरा सैटरडे संडे उसमें occupied रहोगे और आपको you can just watch a lecture there and then only, you can attend the lecture there and then only. But in case you are not available because of any particular reason, you know कि whenever we have 2-3 classes to upload, it will automatically get upload. You don't have to follow up for the same because it's a part of the technical team process that they just upload the lectures whenever they have 2-3 lectures to upload. सो अगर किसी वीकेंड एक क्लास हो रही है और नेक्स्ट वीकेंड दो क्लास हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि नेक्स्ट वीकेंड का जो मंडे ट्यूसडे आएगा उसमें लेक्चर्स अपलोड हो जाए. वीकेंड पे लेक्चर्स नहीं अपलोड होते बिकॉज वीकेंड्स आर कंप्लीटली पैक्ड विद क्लासेस बैक टू बैक. सो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम. सो मंडे ट्यूसडे तक लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाएंगे. सो दिस इज फॉर द वीडियो प्रोग्राम स्टूडेंट्स. Now, apart from the content lectures, what other type of lectures you guys have seen in your browser? अभी content lectures की हमने discussion कर ली कि these are basically forming your base and are just based on co-reading. Apart from content lectures, और कौन-कौन से lectures है browser पे? Guys, be quick. Okay. Yes, yes. So we have past paper lectures as a second head. Then you must have seen X series lectures. Then we have November 2023 sessions, and we have one more topic which is trending topics. अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि what exactly India exams are focusing upon, especially for all those students who are planning to give it from II, अभी जो फीडबैक मेरे पास स्टूडेंट्स का है कि आई पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ CP1, आई एम टॉकिंग इन जनरल, दैट आई इज टेस्टिंग थिंग्स which are not there at all in the core reading. For example, if you get a question on climate change, let's suppose, so climate change is a very hyped topic nowadays, but it is not quite detailed in the core reading. They just have pointed out certain things related to climate change at various places and not in any particular chapter as well. Basically, let's suppose थोड़ा सा उन्होंने चैप्टर 10 में बोल दिया, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज चैप्टर 24 to 30 में बोल दिया, देन 37 में फिर से बोल दिया. तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर चैप्टर, बट येस बिट्स एंड पार्ट्स में कुछ कुछ उन्होंने पूछा हुआ है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. नाउ व्हाट इंडिया एग्जाम्स आर फोकसिंग अपॉन इज दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स कि शायद जिसका एक लाइनर ही मेंशन है आपके कोर रीडिंग में, उसके बेसिस पे वी हैव बीन गेटिंग क्वेश्चंस एज हाई एज 15 मार्क्स एज वेल. तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज कि चैप्टर वाइज अगर हम कुछ कंटेंट कर रहे हैं तो ठीक है, हमने कंटेंट लेक्चर्स में किया. जो जो न्यू एडिशंस आपके CMP अपग्रेड्स में आते रहते हैं वो हम ऑलरेडी आपके एज इन व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर्स, आई विल टेक दोस न्यू एडिशंस इन द क्लासेस. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चेंज आया है. दैट आई विल केटर ऑन माय ओन एंड आई विल टेक इन द लाइव सेशन एज इन व्हेन इट इज शेड्यूल्ड. नाउ वी हैव पास पेपर जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड हमने ये क्वेश्चंस अपने पास पेपर लेक्चर्स में कवर किए. एक्स सीरीज लेक्चर्स में आई हैव ट्राइड टू कवर डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्स सीरीज बिकॉज इंडिया एग्जाम्स में डायरेक्टली एक्स सीरीज टेस्ट हो जाती है.
So you cannot leave X series at all if you are planning for May 2024 attempt, because we have seen direct question from X series being tested in India exam. एंड नवंबर 2023 सेशंस कौन से हुए, बेसिकली जो आपके लास्ट डाइट के सेशंस हैं, जिसमें लास्ट डाइट में जो भी सेशंस हुए हैं, दे those sessions have been uploaded here and those are basically discussion sessions only. Now this is something new that is trending topics. मैंने क्या किया है, उन टॉपिक्स पे बेसिकली आई हैव ट्राइड टू टेक सेशंस which are not, as I told you, which are not chapter specific, but yes, which are trending right now, which are something which are those topics which are taking a lot of attention right now, and a question can be expected from those topics. So these are not chapter wise content, but basically current topics which can be expected in exam. तो trending topics हम और ज़्यादा add on करते रहेंगे as in when I feel कि there are certain topics which need to be discussed. तो बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक्स की जो डिस्कशन होगी ना, उस पे आई विल ट्राई टू टेक वीडियो प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल, सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट ट्रेंडिंग टॉपिक इज ऑल अबाउट. रेस्ट पास पेपर लेक्चर्स अगर हम कुछ कर रहे हैं, yeah, any case study discussion or anything that we are doing, we will specifically be keeping it for the live program students, and as and when the lecture is uploaded, you can just watch it there and then. So with respect to the content in the browser, everything clear? या भी कुछ भी कोई डाउट है कि इस चीज में क्या है, और हाउ डू आई हैव टू प्रोसीड? ओके, हाउ डू यू हैव टू प्रोसीड? अब आपका ये बहुत कॉमन डाउट होना चाहिए कि मान लो हमारे पास तो इतना कुछ है देखने के लिए, तो एग्जैक्टली हाउ डू वी हैव टू डिवाइड द टाइम? कब मुझे कंटेंट लेक्चर देखना है, कब मुझे पास पेपर लेक्चर देखना है, कब मुझे एक सीरीज लेक्चर पे आना है? एग्जैक्टली हाउ डू वी हैव टू मैनेज टाइम? This is the real struggle, and for this you will be getting targets from our side. तो let's suppose next weekend का सैटरडे संडे दोनों दिन का आपके पास क्लास टाइमिंग्स आते हैं 7:30 AM, और टाइमिंग्स पे लिखा होता है चैप्टर 8 to 10 डिस्कशन. So first thing that I would like to tell you is I don't start from chapter 1 in CP1, I start from assets market. तो जिस मैनर में आपके कंटेंट लेक्चर्स अपलोडेड है, हम लोग उसी मैनर में प्रोसीड करेंगे. तो आपके कंटेंट लेक्चर्स, इफ यू हैव सीन चैप्टर 8 to 10, देन यू हैव चैप्टर 11 to 16, देन चैप्टर 24 to 30, then chapter 17 to 23, then chapter 35 to 38, and इसके बीच में I take chapter 0 to 7. So this would be the way of proceeding chapter wise while doing discussions. ठीक है, अब आपके पास मैसेज आया सैटरडे संडे का चैप्टर 8 to 10 डिस्कशन का. तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट फॉर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस, मैं चैप्टर 8 to 10 की लाइव क्लास में I will not be going through the co-reading again, because that has already been discussed in quite detail, and co-readings are not tested in exam. We will not be wasting any of our time in just going through the co-reading, which is just a base, and there are a lot of other things which are actually important. तो एक टू डू आपका क्लास अटेंड करने से पहले क्या होगा, यू हैव टू वॉच योर कंटेंट लेक्चर्स बेस्ड अपॉन चैप्टर 8 to 10. तो आई विल गिव यू टारगेट्स विच आर इजीली मैनेजेबल. मैं ऐसे कोई टारगेट्स आपको नहीं दूंगी कि हाँ ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू गिव 5 hours टू अ सब्जेक्ट. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट यू like 95, or I would say 99.7% of our students are working. We have some of the students who are not working, but they have picked CP1. But yes, majority students are working. So definitely I will not be giving you any targets which you are not able to meet. But ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, आप सीधा सैटरडे संडे की क्लास से पहले आप फ्राइडे रात को बैठते हो पढ़ने के लिए, और आपको लगता है कि I will take part in fruitful discussion in the class. That will not make any sense. So I am discussing this in quite detail in your first session only, that you have to be very regular in the class. This is the first thing that we require from you, that you have to be very regular with your targets. Now how we would know कि you are not focusing on targets is that supposingly chapter 8 to 10 discussion का message आता है, आप आपसे क्या expected है? We will write in our targets as well that you are expected to complete your chapter 8 to 10 content lecture, so that
वीडियो स्टूडेंट्स ऑल्सो नो कि इस वीक का हमें क्या करना है. वीडियो स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि अच्छा इस वीक सैटरडे संडे की क्लास में 8 to 10 के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और टारगेट क्या है कि 8 to 10 के कंटेंट लेक्चर्स रैप अप करना है. तो आपको भी अपनी वीडियोस को उस हिसाब से मैनेज करने का अपना शेड्यूल आप उस हिसाब से एडिट कर सकते हो कि ओके आई हैव टू कंप्लीट माय वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर वीक. एंड लाइव स्टूडेंट्स नो कि ओके वी आर इफ यू हैव टू अटेंड द क्लास वी डेफिनेटली हैव टू वॉच द वीडियोस. अब अगर आपके ऑप्शन निकाल लोगे यार क्लास ही अटेंड नहीं करते तो इट डजंट मेक सेंस बिकॉज वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर यू. तो ये जो आपको टारगेट मिल रहा है ये आपको प्रेशर देने के लिए ही मिल रहा है. So what's the point of taking training if you don't want pressure? This is the pressure that we will be giving you कि yes you have to study. Now Friday तक अगर आपने देखे नहीं होंगे तो we have a separate team member who is just tracking the progress of different students. So you will get message on your WhatsApp कि we have seen that you have not proceeded with chapter 8 to 10 content lectures and the class is scheduled for tomorrow. So please make sure to complete your target. सो जब आपने नहीं देखा होगा और आपके पास एक मैसेज आएगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा यार कि देयर इज समवन टू ट्रैक माय प्रोग्रेस और एक प्रेशर बिल्डअप होगा आपके पास कि यस आई हैव टू डू. ठीक है आप एक वीक नहीं करोगे, 2 वीक्स नहीं करोगे, 3 वीक्स नहीं करोगे बट ऑटोमेटिकली you will start doing, automatically you will start managing your other commitments accordingly. So you will be targeted upon, you will be basically tracked कि okay you have watched your videos or not. अब आपने सैटरडे संडे की क्लास अटेंड करी. नाउ वी हैव दिस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली अटेंडिंग द क्लास. सो इन केस यू मिस you have enrolled for videos plus live and in case you miss any of the live class so again you will be getting a message that why you have missed your class. This is again done just to be regular, just to make sure that you are regular. So you should reply to these messages because these are for you only. And we are tracking every individual on an individual basis. It's not like that we are just broadcasting in a group. It is you, if you are getting message, you are being tracked on individually. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के अलग से मिनट्स ट्रैक होंगे, हर एक इंडिविजुअल की वीडियोस ट्रैक हो रही है. सो इट्स लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर जस्ट डूइंग इन अ ग्रुप. So if you're getting message, please make sure to reply on it because I have seen basically students not being replied because they feel ki it's just the work of team and they're just doing it. So do reply if you're not able to attend the class. To give them reason that why you're not able to attend the class. अब सैटरडे संडे की क्लास हो गई. ठीक है, सैटरडे संडे की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे. हमने चैप्टर 8 to 10 ऑलरेडी वॉच कर लिया है कंटेंट के थ्रू. I will be doing lot of questions discussion in quite detail and I will try to cover those questions जो यहाँ पर हमने कवर नहीं करे. मतलब ना ही वो आपके पास पेपर लेक्चर्स में है, ना ही वो आपके एक्स सीरीज लेक्चर्स में है, ना ही वो आपके नवंबर 2023 सेशंस में है. May be more questions of different style but not there in the past paper. Maybe more questions from the recent past papers. Maybe more questions from those past papers which have not been covered. So I will try to do those questions which are not there. So that ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक चीज को डबल बार कर रहे हैं. It should be different every time. ठीक है, तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पर किया एंड basically you participated in that and everyone attended the class. ठीक है, अब क्लास हो गई. Now next, what next? Every Monday again you will get the target. अब क्लास के बाद तो आपको पता होगा कि ओके मैंने इन चीजों पे मिस किया है या इन चीजों ये मेरा वीक एरिया था. अब मुझे मेरे कंटेंट लेक्चर तो हो चुका है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका कंटेंट रैप अप होगा आपको पास पेपर लेक्चर्स पे जाना है, एक्स सीरीज लेक्चर्स पे जाना है, नवंबर 2023 सेशंस पे जाना है उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए. ट्रेंडिंग टॉपिक्स इज नॉट चैप्टर वाइज. ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी आप शायद अभी देखो भी नहीं. आप व्हेन यू आर नियर टू एग्जाम जनवरी फरवरी में मैं आपको टारगेट्स दे दूंगी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखने के लिए. अभी यू शुड नॉट बी फोकस ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स बिकॉज ट्रेंडिंग टॉपिक्स बेसिकली रिक्वायर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज बीइंग टेस्टेड इन डिफरेंट मैनर. अभी आप उठाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज यू डोंट नो द कंटेंट वेल. So once you are done with your content lectures, the next step is you will start receiving targets based on completion of your past paper lectures, X series lectures and November 2023 sessions based on those particular set of chapters.
अब आपके पास मंडे को ऑटोमेटिकली टारगेट आ गया कि नेक्स्ट वीक भी हम लोग चैप्टर 8 और 10 ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा कंटेंट खत्म हो गया तो अब मुझे क्या करना है। आपको पता है कंटेंट के अलावा आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास पास पेपर्स है, आपके पास एक सीरीज है और आपके पास लास्ट टाइट के सेशंस है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आई कैन लाइक assure you maybe you can skip your past papers as well, because हम लोग ऑलरेडी इतने सारे past papers यहाँ पर कर रहे हैं। आपको एक चीज था कि like some of the students were telling me ma'am, do give notes as well, handwritten notes, so that we can just remember them and we can just have a quick revision from them as and when we want, instead of going through the lectures again and again. कि आपने जो कंटेंट करवाया है उसके अगर आप नोट्स दे दो, so that once we are done with content lecture, even once, we don't have the need to go through the content lecture again and again just to revise, and we don't have to go through the co-reading as well, because generally students co-reading pick नहीं करते हैं। कंटेंट लेक्चर देखा और उसके बाद पास पेपर लेक्चर्स पे आ गए, बट जब कुछ याद नहीं आ रहा होता कि अच्छा इस टाइम पर हमने क्या किया था, तो देयर इज अ नीड टू गो बैक अगेन टू द कंटेंट लेक्चर, और समटाइम्स यू गो बैक अगेन टू द को रीडिंग जस्ट टू रिमेंबर कि व्हाट वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर्टेन नोट्स फ्रॉम माय साइड। So this time there is one major change, that I will be providing you handwritten notes, this notes which are made by me, handwritten notes, and those will automatically be getting uploaded on your browser. You don't have to follow up for any notes from our side. As soon as a particular set of chapter is over, जिस दिन मैंने आपको बोल दिया कि चैप्टर 8 to 10 मेरी साइड से ओवर हो गया, ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे चैप्टर 8 to 10 के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि अभी चैप्टर 8 to 10 नेक्स्ट वीकेंड का शेड्यूल्ड है, ठीक है, तो चैप्टर 8 to 10 के नोट्स हमारी साइड से अब रेडी हो रहे हैं। ये हमारा टू डू है कि हमें नेक्स्ट वीक तक चैप्टर 8 to 10 के नोट्स अपलोड करने हैं, सो दैट as soon as we wrap up the discussion, students have notes to refer to. But because we are making these notes on our own, and there is one team member who is just dedicated to making the notes, it will definitely take time. I cannot upload all the notes together. It will be uploaded chapter wise, and we have so many subjects to cater, and we will be providing notes in every subject from now onwards. तो आपको थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज प्रोसीड करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके पास नोट्स आते रहेंगे। तो दिस इज वन न्यू एडिशन दैट वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वी आर प्रोवाइडिंग हैंड रिटन नोट्स, सो दैट एक बार आपने कंटेंट लेक्चर देख लिया, आपको रिवीजन के लिए भी दोबारा से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा से को रीडिंग पे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। मैं वो नोट्स ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे अपलोड हो जाएंगे। अब इसका पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर प्राइवेसी पर्पस वी विल नॉट बी एबल टू शेयर द नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। इट विल बी अपलोडेड ऑन योर ब्राउजर, so please don't ask for the pdf from the team, because they will not be able to provide, reason being that we will be just be able to upload it on our browser. So handwritten notes है, ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं आपको। जब भी आपको रिवीजन करना है, कुछ भी करना है, just open your browser and access your notes. So अभी तक anything which is unclear to you guys? Any questions with respect to pattern? Any questions with respect to targets or timelines? Have you guys gone through the schedule which is being uploaded for April and May 2024? There is one file named as scheduled. So have you guys gone through that? Guys, be active. तो अभी तक schedule नहीं देखा? Okay, so after the class, go through the schedule as well. Schedule में अब हम schedule ही discuss कर लेते हैं। हमने अभी पैटर्न डिस्कस करा, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अभी सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू वाचिंग लेक्चर्स एंड ओबेइंग योर टारगेट्स, इट समटाइम्स कैन बी डिफिकल्ट। तो बस आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हम जो आपको टारगेट्स दे रहे हैं या हम जो आपको क्वेश्चनिंग करेंगे, इट्स जस्ट फॉर योर वेलबींग ओनली, इट्स जस्ट फॉर योर इट्स जस्ट फॉर वन मोटिव, दैट वी वांट टू सी योर नेम इन द पास लिस्ट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग।
सो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर एंड मतलब एट टाइम्स स्टूडेंट्स फील कि हमसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि आपने लेक्चर नहीं देखे, हमारी मर्जी लेक्चर देखे या ना देखे. सो दिस इज जस्ट फॉर यू गाइज. अगर वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेम चीज होगी, ट्रैकिंग इज देयर फॉर वीडियो प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल. तो अगर एक हफ्ते में आपने एनरोल करवाया और आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो टीम इज देयर टू आस्क यू कि व्हाई यू आर नॉट वाचिंग द वीडियोस. इट्स बीन मोर देन 7 days of your enrollment and you have yet not started watching videos. So this tracking is there for video program students as well. So take it in a positive manner and try to make sure कि okay you are focusing on target, so that basically that everyone is doing as per the pace in which the live classes are going on. जो pace आपको follow करनी है ना, especially for video program students, it should be same as the pace which is there for the live program students. जिस pace में जिस week पे हमारा जो खत्म हो रहा है, उस week में आपका वो खत्म होना चाहिए. That's the best thing to understand. Now apart from all these content जो अभी हमने discuss किया, what extra thing is there is कि you have your summary list. अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है रेफर करने के लिए. तो आपके पास एक चैप्टर वाइज समरी लिस्ट है, असाइनमेंट्स है, और आपने देखा होगा यूनिट टेस्ट का सेक्शन है और मॉक्स का सेक्शन, एंड वी हैव अ शेड्यूल. तो शेड्यूल में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू कि मेरा ये वाला पोर्शन कब खत्म होगा, मेरा ये पोर्शन कब खत्म होगा, एवरीथिंग इज बीइंग देयर इन योर शेड्यूल. सो आज से ही आपके शेड्यूल में ये चीज मेंशन है कि बेसिकली चैप्टर 8 to 10 का टेस्ट कब होगा. जैसे ही आपका चैप्टर 8 to 10, हम किस सीक्वेंस में प्रोसीड करेंगे, मेरे चैप्टर 8 to 10 की असाइनमेंट कब ड्यू है, चैप्टर 24 to 30 का टेस्ट कब है, चैप्टर 24 to 30 हम कब तक खत्म कर लेंगे. सो एवरीथिंग इज देयर इन द शेड्यूल. इफ यू हैव येट नॉट गॉन थ्रू द शेड्यूल, तो आफ्टर दिस सेशन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू शेड्यूल टू अंडरस्टैंड कि किस किस डेट्स पे आपकी टाइमलाइंस हमने मेंशन करी हुई. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस एंड द way in which we will be proceeding. Now let me just take you through the summary list and assignments, UTs, mocks. इनमें है क्या क्या. तो summary list basically has questions of both II and IFO society past papers questions. तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं है. लेट्स सपोज आपके पास एक्सेस सब कुछ चीजों का है, लेकिन यू आर सो मच ऑक्यूपाइड विद योर अदर कमिटमेंट्स कि यू डोंट हैव टाइम, कि आपके पास लेक्चर देखने का भी टाइम नहीं है. तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इफ यू वांट टू डू क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड इफ यू फील कि आई डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू द लेक्चर, so we have this list ready of questions which are important from II to do and which are important from IFOA. So if you don't want to go through these lectures, you can just simply practice the questions which are mentioned in the summary list. So this is something extra. अगर आप ये लेक्चर से ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो, तो ये लेक्चर्स में हमने समरी लिस्ट के क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए. तो you can just skip summary list because if you have covered the lecture, summary list is already covered there. But if you have yet not gone through the lectures and if you don't and you are near to exam, you don't have time to go through lecture, or you have very limited time and you feel ki I should do the questions on my own instead of just watching the lecture, so you can check down your summary list and practice questions from there. So this is a list of basically past questions. Then you have your assignments. और असाइनमेंट्स का ना शेड्यूल में ना डेडलाइंस मेंशन है. ठीक है, तो हम असाइनमेंट्स आपसे लेंगे. यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन द मेंशन्ड ईमेल आईडी एंड यू विल बी ट्रैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट. इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट, यू विल गेट द मैसेज दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड योर असाइनमेंट. तो असाइनमेंट से पहले आपके क्या टू डूज है, कंटेंट, पास्ट पेपर्स, एक्स सीरीज, remember sessions based on those particular set of chapter. मतलब अगर चैप्टर 8 to 10 के असाइनमेंट, लेट सपोज मैं आपको बोलती हूँ आपको चैप्टर 8 to 10 के असाइनमेंट 25 दिसंबर को ड्यू है, तो पहले तो एक वीक पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा दैट योर चैप्टर 8 to 10 असाइनमेंट इज ड्यू ऑन 25 दिसंबर, मेक श्योर टू सबमिट इट ऑन टाइम. एक दिन पहले भी आपके पास मैसेज आएगा दैट इट्स ड्यू टुमारो, मेक श्योर टू सबमिट ऑन टाइम. एंड ड्यू डेट के 2 दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा दैट यू हैव नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट, व्हाट्स द रीजन फॉर सेम. तो आपके पास बेसिकली 2-3 बार नोटिफिकेशन आएगी दैट यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट. कि अगर आपके पास शेड्यूल नहीं भी देखा आपने, तो यू हैव द टीम टू
notify you. And basically assignment का क्या motive है? Why am I focusing on assignment? मैंने क्यों टीम को बोला है कि okay we have to try based on assignment? Because assignment के आप questions तभी submit करोगे जब आपने content देखा होगा, जब आपने इन सारे लेक्चर से गो थ्रू किया होगा. एटलीस्ट 100% लेक्चर से नहीं भी गो थ्रू किया, आपको ये तो लगेगा कि यस यार, जब मैं ये असाइनमेंट कर रही हूँ तो मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा वीक लग रहा है, तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया मोर. So you will be able to self-realize in which all domains you are focusing less and which particular area you need to work upon. तो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ चेक होगा आपके लिए कि yes I am still struggling with chapter 8 to 10, let's suppose application style questions. I am struggling with chapter 8 to 10 knowledge based questions. तो मुझे, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आई वुड से सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्ट फ्रॉम द कोर रीडिंग, तो आपको लगेगा कि यस आई नीड टू गो थ्रू द कंटेंट अगेन. अगर आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आपने कंटेंट लेक्चर्स उठाए, उसके बाद डायरेक्टली आपने असाइनमेंट उठा ली, तो आपको समझ आ जाएगा यार कि ये तो अभी इजी क्वेश्चंस के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, व्हाट अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दैट मींस आई नीड टू गो थ्रू दीस सेट ऑफ लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेल. प्लस लाइव सेशंस, ये तो हमारे लेक्चर्स वीडियोस अपलोडेड है, इसके साथ साथ जो हम लाइव सेशंस लेंगे, आपने अगर वो भी नहीं अटेंड करे या वो नहीं देखे बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, तो अगेन यू आर मिसिंग समथिंग. तो असाइनमेंट की डेडलाइन इज बेसिकली अ डेडलाइन फॉर यू to complete everything related to those particular set of chapters before your due date. बिकॉज एट टाइम्स हमने ऐसा भी देखा है कि हम 24 to 30 के असाइनमेंट पे और मतलब डेडलाइन हमने दे दी है और स्टूडेंट्स हैव येट नॉट कंप्लीटेड 8 to 10 के कंटेंट लेक्चर्स भी. सो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में कि दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग, बट ये सब कुछ सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर गिविंग योर 100%. We are here, I am here for every doubt that you will be sharing with me, but सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू वॉच, यू हैव लॉट ऑफ सेशंस टू अटेंड, बट वो तभी सेंस बनाएगा जब आप ये सब कुछ गो थ्रू कर रहे हो. अगर आपको लगता है कि आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली तो आपने बहुत कुछ कर लिया, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज लाइव क्लास में हम लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है. ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल के लिए मैं 1.5 घंटे में 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस आपको कवर कर पाओगे, कितना हम लोग कंटेंट कवर कर लेंगे. इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लाइव क्लास से पहले भी आपका बहुत सारा टू डू है और लाइव क्लास के बाद भी आपका बहुत सारा टू डू है विच यू रियली नीड टू फोकस अपॉन. तो ये हो गई हमारी असाइनमेंट्स की डिस्कशन. फिर वी हैव यूनिट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट तो एज यू आर अवेयर वी जस्ट टेक इट 1 month बिफोर एग्जाम. तो हम लोग मॉक्स लेंगे, सारा कोर्स जब हमारा कंप्लीट होगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, तो हम लोग मॉक्स लेंगे 1 month बिफोर एग्जाम. बट नाउ कमिंग टू यूनिट टेस्ट डिस्कशन. तो यूनिट टेस्ट में व्हाट वी विल बी फोकसिंग अपॉन इज अगेन, let's suppose you have your unit test of chapter 8 to 10. So you have to submit your unit test as the pattern of your respective society. तो you do not have to worry कि यार मैं इंडिया का पेपर दे रहा हूँ, मेरा एग्जाम तो रिटन होता है, तो आपसे हम रिटन फॉर्मेट में ही पेपर लेंगे. और अगर आप IFOI का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे हम टाइप फॉर्मेट में ही पेपर लेंगे. तो इज एवरीवन अवेयर अबाउट दिस थिंग कि पैटर्न चेंज नहीं है. IFOI एग्जाम्स का जो पैटर्न चेंज एक्सपेक्टेड था फॉर अप्रैल 2024 एग्जाम्स, देयर इज नो पैटर्न चेंज. पहले क्या अनाउंसमेंट करी IFOI ने कि वो उन्हीं के पोर्टल पे हम लोग पेपर अपलोड करेंगे, आप कोई वर्ड फाइल नहीं यूज कर पाओगे और आपको जो नोट्स वगैरह रेफर करने वो आप रेफर कर सकते हो, बट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, माइक की रिस्ट्रिक्शन थी, आपका एनवायरमेंट इन्विजिलेट होगा, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए. तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस IFOI ने अप्रैल 2024 एग्जाम्स के लिए कर दी थी, which was actually very good, but obviously it is difficult to make such a system for this much audience, so they are not able to do it for April 2024, and they came up with this conclusion that there will be no pattern change for April 2024 students. So if you are planning for April 2024, so you will be tested in the same manner as your September 2023 exams were. So any doubts with respect to IFOI pattern? Is everyone clear for this particular thing that there is no change in IFOI pattern? Any doubts with respect to IFOI April 2024 pattern? Okay.
Now, I was telling about unit tests that we will be testing your unit tests in the same format. So, if you are staying in Delhi and you want to come to center for giving your tests, you can feel free. We will be giving you notification for that as well. If you want to come to center and give your test in that manner, you can feel free to come. But generally, students don't come, especially working वाले students बिल्कुल भी नहीं आते. Higher subjects के students offline बिल्कुल आते ही नहीं है. So it's okay even if you want to give your test in online format. The system is compatible for that. Just browser पे अभी आपके lectures uploaded है. Same test के time पर वहाँ पे test upload होगा. You just have to download the test, appear for the test in your respective format, type format अगर आप IFOI से दे रहे हो, written format अगर आप II से दे रहे हो, and you just have to send the test on the mentioned email ID that we will be providing you. आपके पास टाइमलाइंस भी आ जाएंगी कि आपका टेस्ट इतनी देर तक है और इस टाइम तक हमारे पास आपका टेस्ट रिसीव होना चाहिए एंड यू जस्ट हैव टू सबमिट इट एंड आई विल बी चेकिंग इट एंड यू विल बी रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम माय साइड. तो दैट फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज उसी से ही आपका नेक्स्ट सेल्फ चेक होगा. एक असाइनमेंट्स के टाइम पर आपको रियलाइज होगा कि खुद को ही कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ. और जब आप टेस्ट दे रहे हो, असाइनमेंट्स क्या है, असाइनमेंट्स टाइम बाउंड नहीं है. असाइनमेंट्स हमने एक डेडलाइन बना दी है कि हाँ आपकी 25 दिसंबर तक लेट सपोज असाइनमेंट आनी चाहिए. अब चाहे वो आज से ही आप असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दो, दैट्स ओके. असाइनमेंट का मोटिव इज नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर डूइंग क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर. असाइनमेंट का मोटिव इज जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. Maybe if you're taking 2 hours for a single question, that will not matter because that's what the motive of assignment is, just to make you practice, just to make you understand क्योंकि this is how you have to write or this is how you have to type. Unit test ka motive is to prepare you for a set of questions that you have to submit within a particular time frame. So time management is very important in unit test. If you don't submit as per the time that we will be providing you, you will not be receiving feedback and that feedback would be really helpful because उसी में ही आपको समझ आएगा. क्योंकि क्वेश्चन 1 माई फीडबैक इज इन अ सिमिलर मैनर. अगर आपको पता होगा कि IFOA से अगर आप एक्टेड से मार्किंग करवाते हो अपने एक्स सीरीज की या असाइनमेंट्स की, तो वहां पे आपको ना मार्किंग में फीडबैक मिलता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में आपका ये लैग करा है, इस क्वेश्चन में ये लैग किया. इन द सिमिलर मैनर यू विल बी रिसीविंग फीडबैक ऑन योर अटेम्प्टेड टेस्ट. For example, question 1 में you scored 4 out of 9 marks. तो what's the reason for losing 5 marks? कौन से particular areas में आपने focus नहीं किया? If you scored well, तो आपको रियलाइज हो जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कि व्हाई यू हैव स्कोर्ड परफेक्ट. बट बेसिकली जहाँ पे भी आपके कम मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू लूज 1 मार्क, तो 1 मार्क इज रियली इंपॉर्टेंट. यू नो कि एक्चुअल एग्जाम्स में 1 मार्क की क्या इंपॉर्टेंस है. तो आपको अगेन फीडबैक में वो मेंशन होगा कि व्हाई यू हैव लॉस्ट योर 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रियलाइज कर रहे होंगे कि यस आई विल डेफिनेटली सबमिट माय टेस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई एम प्रोसीडिंग एंड वेल स्पेशली जब आपने एग्जाम फिल किया होगा, आपने फीस पे करी होगी ना, उस टाइम पर जो टेस्ट होगा तो आप लोग बहुत एक्टिव होते हो. But there are many students don't pay attention to tests and when it actually comes to exam time, so they are panicked and then we have sessions कि आप क्या करें, आप क्या करें. तो गाइज एक रिकमेंडेशन है मेरी फॉर एवरी स्टूडेंट, बी इट यू आर अ वीडियो प्रोग्राम स्टूडेंट और लाइव स्टूडेंट, try to be regular with your targets. First thing, try to be regular with your assignments and do not miss any of your tests at all. टेस्ट ना सबमिट करना, टेस्ट के लिए टाइम्स मतलब आप कहते हो कि इस दिन टेस्ट हो जाए, इस दिन टेस्ट हो जाए, वो नहीं पॉसिबल है बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स का शेड्यूल अभी से ही बना हुआ है. और अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज लाएंगे ना, इट विल इम्पैक्ट अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज चेकिंग इम्पैक्ट होती है. वी हैव deadlines for checking as well because it's very difficult to check every paper and एक पेपर में बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो चेकिंग का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो दैट्स व्हाई द शेड्यूल इज डिजाइन्ड लाइक दिस एंड सो डू नॉट कम अप विद दीज रिक्वेस्ट कि आई वाज बिजी इन दिस, आई कैन नॉट अटेम्प्ट टेस्ट एट दिस टाइम, प्लीज चेंज द टाइम और एवरीथिंग. यू हैव योर डेट्स रेडी टुडे ओनली. वी विल बी प्रोसीडिंग एज पर दोज डेट्स ओनली. सो टाइमिंग्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स की प्रेफरेंस है वो आप एक बार डाल सकते हो. अगर हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम उस टाइम में टेस्ट ले ले तो इट्स ओके. अगर अदरवाइज यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट एज पर द डेट्स एंड टाइमिंग्स दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू.
So this is how we will be proceeding. This was all about discussion related to the next steps of CP1. So exam is a bit difficult. I would not say कि it is an easy exam. Now approach towards exam. हमने अभी इतनी देर से ये सब कुछ डिस्कस कर लिया कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, आपको इस हिसाब से गो थ्रू करना है. So what does exam wants from you? First thing, regular consistency, determination. You do not have to miss your study even a single day. Even if you are able to take out half an on a daily basis, मतलब at times I can understand कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ऑफिस में एंड कि हमारे लिए मुश्किल से आधा घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कट डाउन योर लेजर आवर्स, कट डाउन योर स्लीप आवर्स एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि एक भी दिन स्किप ना हो. So you have to be very very regular with your subject. And supposing you are not finding out time to do questions, because I can tell you from the experience, let's suppose आपका एक कंटेंट लेक्चर है 1.5 आवर का, ठीक है, और पास पेपर लेक्चर भी है 1.5 आवर का. कंटेंट लेक्चर 1.5 आवर का आपको अब नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है, बिकॉज मैंने वो नीड भी खत्म कर दी है, दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 100 नोट्स ऑन आवर ओन. तो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि एक घंटा वाला अगर लेक्चर है तो उसमें भी 1.5 घंटा लग जाता है बिकॉज नोट्स बनाने पड़ते हैं. तो मैंने वो नीड भी आपकी खत्म कर दी, आपको नोट्स भी नहीं बनाने, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स, यू जस्ट हैव टू लिसन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो कंटेंट लेक्चर जो है ना वो आप जल्दी भी रैप अप कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो. मान लो बहुत इजी चैप्टर चल रहा है, इजी टॉपिक चल रहा है, तो उसको स्पीड बढ़ा दो एंड ट्राई टू रैप अप सून. Why do you have to waste your time in just watching? अब मेरी बात समझो, कंटेंट लेक्चर आप अगर देख रहे हो तो आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हो, बिकॉज मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, नॉट टू मेक यू वॉच कंटेंट लेक्चर बट मेक यू वॉच द पास्ट पेपर लेक्चर्स एंड मेक यू अटेंड द लाइव क्लासेस. आप लाइव क्लासेस जब कर रहे हो यू शुड बी वेरी रेगुलर विद दैट. आप जब लेक्चर्स पास्ट पेपर लेक्चर्स कर रहे हो यू शुड बी वेरी रेगुलर विद दैट. कंटेंट लेक्चर तो आपको ये होना चाहिए बस मुझे जल्दी से रैप अप करना है, मेरे पास नोट्स आ जाएंगे, मैं उन नोट्स में से चीजें याद कर लूंगा या कर लूंगी. कंटेंट एक बार बस मुझे समझना है कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है. तो कंटेंट लेक्चर जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू योर ऑफिस और यू आर ट्रैवलिंग टू एनी अदर प्लेस एंड यू फील यू हैव हाफ आवर 40 मिनट्स 1 आवर टाइम, ट्राई टू वॉच योर कंटेंट लेक्चर देयर, ट्राई टू रैप अप योर कंटेंट लेक्चर देयर. एक तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका एक लेक्चर भी खत्म हो गया और साथ में आपका एक टू डू खत्म हो गया एंड यू कैन फोकस योर प्रोडक्टिव टाइम बेसिकली ऑन योर पास्ट पेपर्स लेक्चर्स. बिकॉज अगर 1.5 घंटे का पास्ट पेपर लेक्चर है ना, इट कैन टेक सम टाइम 2 आवर्स एज वेल. बिकॉज होगा क्या, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करी होंगी, ठीक है, I give very less time in when discussion sessions for attempting a particular question, because obviously we have a lot of questions to discuss and because of limited time मैं आपको उस लेवल का टाइम नहीं दे पाती जो हमारे पास एग्जाम में होता है. मान लो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो you would feel कि I have 30 or 35 to 40 minutes in exam, but I will not be able to give you 40 minutes. I will have to start discussing in 15-20 minutes only. तो you will feel कि अभी तो मेरे पास है टाइम, आप वीडियो पॉज कर दोगे और आप अपने आंसर करते रहोगे. So at times your past paper lecture of 1.5 hour can turn out to be 2 to 2.5 hours as well, depending on the questions and the time that you are taking. तो वो आपका productive time है डे का. वो आपको ऐसे नींदों में ट्रैवल करते समय वो लेक्चर कभी भी नहीं देखना, बिकॉज यू शुड राइट व्हेन यू आर डूइंग पास्ट पेपर लेक्चर, यू शुड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन which is there in your past paper lecture as if you were there in that particular class. तभी सेंस है उस लेक्चर को वॉच करने का. There is no sense of watching past paper lecture just orally and not doing questions इन योर रिस्पेक्टिव फॉर्मेट. आप इंडिया से अपियर कर रहे हो, आप सेम क्वेश्चन को रिटन फॉर्मेट में करो. आप आईओफओई से अपियर कर रहे हो, सेम क्वेश्चन को टाइप फॉर्मेट में करो. और सी आप देखो कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी तो उस टाइम पर ये पॉइंट सबमिट करे, तो क्या मेरे इस लेवल के पॉइंट्स बन पा रहे हैं या क्या मेरे ये पॉइंट्स बन पा रहे हैं. जब तक आप ये सारे टू डूज नहीं करोगे आपको अपनी रियल प्रोग्रेस नहीं पता चलेगी. लाइव सेशन में क्या होगा, अगर 10 लोग लाइव है, आई कैन टेल यू उसमें सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स आंसर करेंगे. Rest will not even take the pain to answer because they will feel we are not prepared for the subject. But yes, I just don't want to miss the live. That's why I'm attending live, but I'm not ready for the chapter. I have a lot of lectures to what I have not watched the lectures. So
Many students will satisfy themselves with this particular thing कि I am not attending, I am just taking it live just not to miss, but yes, I am not done my to do, so I will not be able to commit. You will only be able to make a fruitful discussion out of live class if you are completing your to do's. So guys, आपका जो लेस प्रोडक्टिव टाइम है डे का, डिवोट द टाइम टू कंटेंट लेक्चर्स स्पेशली फॉर द इजी चैप्टर्स, बट जो आपका फ्रूटफुल प्रोडक्टिव टाइम है, डिवोट द टाइम टू योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच यू कैन फाइंड ऑन पास्ट पेपर्स लेक्चर्स एक्सीज नवंबर 2023. रिविजन नोट्स डू नॉट, देयर इज नो नीड टू रेफर टू रिविजन नोट्स, बिकॉज एक तो अपनी ये हैबिट हटाओ चैप्टर वाइज चलने की. अब एग्जाम में ऐसा आप कुछ भी चैप्टर वाइज नहीं आता. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू प्रोसीड चैप्टर वाइज, बिकॉज एक पार्ट एक चैप्टर से होता है, दूसरा पार्ट किसी और चैप्टर से होता है, सो इट्स इज वेरी डिफिकल्ट. एंड रिविजन नोट्स में तो ये एक आदत बन जाती है कि अच्छा ये सेट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट किया, उसके ये क्वेश्चंस करे. नो नीड टू रेफर टू फॉर एनी रिविजन नोट्स. Just focus on content lectures and your past paper lectures. No need of co-reading, no need of going through past paper questions on your own as well, because हमने इसमें सारे क्वेश्चंस करे हैं आई और IFOA के. ठीक है, तो अगर आपको लगेगा, मैंने हर क्वेश्चन में ना ये जरूर बोला होगा व्हाइल आई एम टेकिंग लेक्चर कि दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट फॉर आई स्टूडेंट्स और दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट फॉर IFO स्टूडेंट्स. सो अगर आप आई चूज कर रहे हो और मैंने ये बोल दिया है कि दिस क्वेश्चन इज मोर रेलेवेंट फॉर IFO स्टूडेंट्स, तो you can just skip that question, you can just watch that lecture at 1.5 times speed just to मेक श्योर कि हाँ मैंने एक बार देख लिया है, बट ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई कैन जस्ट टेक इट क्विकली. सेम गोज फॉर आई स्टूडेंट्स एज वेल. मतलब ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ सो दैट आपके पास एक होता है ना कि ये वाला लेक्चर भी अभी तो पढ़ा है, ये लेक्चर भी अभी पढ़ा है, अभी मैम ने 10 घंटे का टारगेट दे दिया, एक हफ्ते में हम वो कैसे कंप्लीट करें. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट. यू हैव समटाइम्स हैव टू वॉच एट 2x as well, just to wrap up the things quickly which are irrelevant. I'm not telling you to focus on irrelevant things. You just have to be very smart in your studies and focus and only on relevant content. रेस्ट करंट थिंग्स बहुत सारे. अभी क्या होता है कि आप इंडिया के एग्जाम से गो थ्रू करोगे, IFI के एग्जाम से गो थ्रू करोगे, आपको लगेगा यार ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं पर. So you do not have to worry about all these topics which are not tested from core reading, but which are not directly from the core reading but are tested in exam. We will be doing trending topics discussion in regular intervals. So जब जब भी मुझे लगेगा कि ऐसा कोई टॉपिक है जो हम ट्रेंडिंग में डाल सकते हैं which can be expected in exam, we will take session based on that particular topic. सो सारी चीजों का एक ही एम है कि वी आई जस्ट वांट एवरीवन टू पास एंड आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी रेगुलर विद योर स्टडीज. आपको कभी भी लगे कि आप बहुत ज्यादा ऑफ जा रहे हो पेस से, मतलब क्लासेस की पेस कुछ और है और आपका बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आपका पेस नहीं मैचअप कर रहा, क्या करें. तो फील फ्री to ask team to give you a slot with me and we can just connect on individual one-to-one level and we can have a quick discussion related to your individual progress. Because ये जो अभी मैं आपको पूरी deadlines वगैरह बता रही हूँ, this is for every student to follow, but at times situation comes कि हम लोग बिल्कुल भी स्केड्यूल के हिसाब से नहीं प्रोसीड कर पाते, पेस नहीं मैच कर पाते, तो व्हाट टू डू. तो irrespective of whether you are a video program student or a live program student, just feel free to ask for institute number to have a quick slot with me. बट आपको ही बोलना पड़ेगा, मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब स्लॉट के लिए भी टीम आपको बोले कि अच्छा कोई स्लॉट चाहिए, कोई स्लॉट चाहिए, कोई स्लॉट चाहिए. आप खुद बोल सकते हो कि आई नीड अ क्विक स्लॉट, 10-15 minute slot and they will just book the slot of yours with me. So this was how that we will be proceeding. So we are starting with technical discussion basically of chapter 8 to 10 from next weekend onwards. अब जिसके पास भी ब्राउजर का एक्सेस है, just be active on your browser and start watching chapter 8 to 10 content lectures. Your first to do is just chapter 8 to 10 content lectures. I have many students basically from this batch, अभी शायद live नहीं होंगे student, who are taking CP1 along with other subjects as well. So we have some of the students, I just want to point out this thing as well before winding up the session, that we have some of the students who are going for CP1 plus CP2 and 3 together.
Then we have certain set of students who are going for CP1 and SP2, and we have certain set of students who are going for CP1 and SP1. तो अब आपको कैसे प्रोसीड करना है, आई विल बी टेकिंग इट इन इंडिविजुअल। SP1 एंड SP2 की क्लास में उनके टारगेट स्पेसिफिकली मैं उनकी क्लास में डिस्कस करूंगी, बट अभी जैसे आपके पास CP1 के टारगेट्स आ रहे हैं, तो CP2 और 3 में आप अगर थोड़ा सा कम टाइम भी दोगे ना तो इट इज ओके। तो इफ यू हैव एनरोल्ड फॉर बोथ CP1 and CP2 3 टुगेदर, तो you will be getting your targets of CP2, you will be getting your targets of CP1, and एक बार आप उससे इंडिविजुअल कनेक्ट करें ना कि मुझे कैसे कैसे प्रोसीड करना है, तो आई विल गाइड यू इंडिविजुअली कि अच्छा दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड एज पर योर सब्जेक्ट्स। Same goes for CP1 and SP2 students. So majority students have picked CP1 and SP2 together. सबसे बड़ा रीजन यही है कि रेगुलर आप बहुत ज्यादा हो जाते हो जब आप दो सब्जेक्ट्स उठाते हो, और ये बड़ी डाइट है। अगर आप दो सब्जेक्ट्स प्लान कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं who have been planning for a long time but they were not able to give attempt for any particular reason, तो आपको लगता है कि मतलब 2-3 सालों से एक भी एग्जाम नहीं निकला, तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट्स। तो जनरली आप अपनी डोमेन के हिसाब से या तो आपने CP1 SP1 पे किया हुआ है या CP1 SP2 पे किया हुआ है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम। सो यस, इट्स अ लॉन्ग डाइट, एंड इस डाइट में हम सबसे ज्यादा बेसिकली मैनेज कर सकते हैं दो सब्जेक्ट्स। तो हाउ यू हैव टू मैनेज इज कि you don't have to worry at all, because I have seen students clearing both the subjects together in a single attempt. It's up to you that how you are able to give efforts. आपने अगर दोनों सब्जेक्ट्स उठाए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे देने। अगर आपने दो सब्जेक्ट्स उठाए हैं, तो when you are studying for SP2, this is also like preparing for CP1. when you are preparing for CP1, at times life का चैप्टर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो it is helping you for your SP2 as well. तो ये दोनों एक दूसरे को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसे समझना है। अगर आपने दो सब्जेक्ट्स पिक करे, तो आपका स्केड्यूल हम कुछ डिफरेंट मैनर में प्रिपेयर करते हैं। सो आपको अगर आप 1.5 आवर्स भी मुझे दोगे, तो फॉर ईच सब्जेक्ट, या फिर मान लो CP1 के लिए आपने 1.5 आवर्स दे दिया, SP1 या SP2 के लिए आपने 1 आवर भी दे दिया आज से, तो भी यू कैन प्रोसीड वेल विद द टारगेट्स. So all those who have picked multiple subjects, please feel free to connect with me on one-to-one level for your quick guidance related to how to proceed. And the only reason that why students are choosing multiple subjects is कि एक तो ये डाइट बड़ी है, और एक आपको लगता है कि अभी टाइम है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड मे बी इन February we will see कि whether there is a need to give two subjects, और उस टाइम पर जिस लेवल की प्रिपरेशन होगी उससे उस प्रिपरेशन के हिसाब से हम लोग एग्जाम फिल कर देंगे। सो अगर आप बहुत टाइम से एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप एक और सब्जेक्ट और साथ में उठा लो, एंड मे बी आप February में डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट देना है। बिकॉज अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना, तो मे बी सितंबर अटेम्प्ट तक शायद आपकी दोनों क्लियर हो जाए। So for this particular thing, if you require any guidance, so feel free to connect with me on one-to-one level. Rest, we will be starting with technical discussion from next weekend, and I would want everyone to complete chapter 8 to 10 content lectures before attending live. For video program students, guys, just try to be regular with your studies and try to wrap up your content lectures in your upcoming week. So with this, we are done for the day. Any doubts before I wind up? Any doubts to anyone? Mm-hmm. Okay, so there's one doubt that one student has raised that CP1 and SP2 are falling on the same date. तो इनकी मुझे इंडिया वालों से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है that there are multiple students who pick these two subjects together, and how can they be make it in a single day? But yes, it is manageable because अब क्या इंडिया के एग्जाम में रिटन हो गए पहली चीज, तो आई डोंट थिंक सो कि रिटन में इतनी कोई हमें दिक्कत होती है। अगर ये सेम चीज अगर आपके टाइप फॉर्मेट पे होती है ना, तो इट इज
is difficult to attempt, but yes, written exams, even if you have two exams on a single day, तो आप manage कर सकते हो, provided you are good with your writing. आप अगर written practice, मतलब let's suppose अभी हम नवंबर एंड पे हैं, तो नवंबर एंड से हम पूरा अप्रैल तक अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो रिटन में, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के लिए अटेम्प्ट मिस करना is not a valid reason. You should definitely give the attempt provided that you are practicing enough. यहाँ पर आपकी ना प्रैक्टिस काम आएगी, तो आप जितना रिटन में प्रैक्टिस करोगे it will prepare you well for the exam. But yes, it is manageable. Like there are students who give like this, so it is manageable. No, no, this is for those as well. Basically, CP1 and SP2, if you feel ki you have not studied the subject before and you are preparing it for the first time, तो shall I pick CP1 and SP2 together? तो yes, you can pick. Because इस वाली डाइट में मेरा ये रीजन है आपको बोलने का कि इस वाली डाइट में अगर आपने सिर्फ CP1 फोकस किया, ठीक है, और बाय द टाइम फेब्रुअरी कम्स एंड यू फील कि यार मैं तो CP1 के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, नाउ व्हाट टू डू, so you do not have any second option, you still have to go for the attempt. And there are students who give the attempt but they tell me in advance only ki I am not prepared for the attempt, just because I have failed the exam and I just have to show in office that I am giving exam, so that's why I am going to the center, but I am not at all prepared for the subject. तो दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी कि आपने पूरे अपने 6-7 मंथ्स वेस्ट कर दिए और आपने एक सब्जेक्ट भी अपना क्रेडिट पे ले लिया। अगर आप दो सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे क्या रहता है कि हम एक पूरे ईयर की बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर मे 2024, आई एम टॉकिंग टिल बेसिकली सितंबर 2024 कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू सब्जेक्ट्स राइट नाउ इवन फॉर द फर्स्ट टाइम, योर टारगेट शुड बी कि बाय द एंड ऑफ 2024 बेसिकली आई शुड हैव दीज टू सब्जेक्ट्स इन माय क्रेडिट। अब क्या होता है, अगर आप एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका रिजल्ट के लिए आप वेट करते हो, मई में आपका एग्जाम होगा, फिर से हमारे नवंबर में एग्जाम है, तो वो डाइट बहुत छोटी होती है और हम अगर एक बड़ा थ्योरी वाला पेपर देकर आते हैं तो वैसे भी हम पूरे श्योर नहीं होते कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। जुलाई में रिजल्ट आएगा, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, गिवन दैट वी हैव फेस्टिविटीज इन अक्टूबर, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने का। So this is the reason that students give two exams, so that their target is ki okay, by the end of year 2024 I have to clear both the exams. I have seen students, you will not even realize this, that basically students who have picked from September basically and October November बहुत rigorously उन्होंने क्या किया, सिर्फ classes attend करी और videos से go through करा और SP1 and SP2 दोनों दे दिया in November itself. रीजन बीइंग कि एक कोई एक तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर हम दोनों भी पढ़ रहे हैं ना तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओके अगर मैं हेल्थ पढ़ रही हूँ तो मुझे लाइफ की कुछ वैल्यू नहीं ऐड करा, मतलब इट इज एडिंग वैल्यू टू योर अदर सब्जेक्ट एज वेल। और CP1 में तो हम लाइफ भी, जनरल भी, पेंशन भी, सब कुछ ही पढ़ते हैं, तो अगर आप पेंशन से हो तो CP1 और SP4 डेफिनेटली आपको टुगेदर देना चाहिए, बिकॉज 30% ऑफ द कंटेंट इज सेम इफ यू आर इन पेंशन। लाइफ का आई विल नॉट से कि 30% कंटेंट सेम है, बट येस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन। जैसे अगर मैं क्लाइमेट चेंज टॉपिक की बात ही करूँ तो दिस इज कॉमन टॉपिक फॉर बोथ SP2 एंड CP1। अगर हम रिस्क की बात करें तो अगेन दिस इज कॉमन टॉपिक। आप रिस्क इतना डिटेल में CP1 में समझ जाते हो कि जब आप SP1 और SP2 में रिस्क का चैप्टर आता है ना तो आपको लगता है यार ये क्या है, इतना डिटेल में हम ऑलरेडी CP1 में कर चुके हैं। एसेट्स हम लोग इतने डिटेल में ऑलरेडी CP1 में करेंगे कि when it comes to assets or investment chapter in your SPs, you will feel like this is nothing in front of what we have done for CP1। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली add on करता ही करता है। So rest it's up to you that how you are able to manage, but yes you should give difficult targets to yourself, तभी आप अपने आई वुड से कि अगर आप इजी टारगेट दोगे ना तो हम वो इजी टारगेट भी फॉलो अप नहीं कर पाते। अगर हम डिफिकल्ट टारगेट्स देंगे ना तो हमें लगेगा यार हाँ अगर मैंने अपने आप को 3 घंटे दिन का देने का टारगेट किया है तो एक दिन आप नहीं पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, मैसेजेस आएंगे आपके पास, क्लासेस आप मिस करोगे, तब आपके पास एक हिट आएगा कि yes I have to prepare, and the moment you will be filling your exam and giving fee something on your own, so yes it will help hit you, and at least you will be focused on clearing exams, so this is the only motive.
Okay, guys. So I think if you have any other doubts, then we can take that. Otherwise, we are good for the day. To all those students who have missed today's session, we will be uploading this session by next week only. So please आप इस चीज के लिए मत आना कि ये session कब upload होगा. ये next week upload होगा. So try to be regular with your live classes as much as possible. 7:30 AM है, आपका पूरा दिन भी यूज नहीं कर रहे हम लोग. सबसे पहले मैं अपना दिन CP1 से स्टार्ट करती हूँ और इसकी इमीडिएटली बाद SP2 की क्लास होती है. तो दीज आर द टू क्लासेस जो अर्ली मॉर्निंग होती है. तो CP1 की मतलब इट्स बीन आई वुड से 5-6 years की बैच का टाइम चेंज ही नहीं हुआ. एवरी वीकेंड सैटरडे संडे 7:30 AM ही क्लास होती है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम विच इज सूटेबल फॉर एवरीवन. So be regular with your classes, be regular with your targets, and feel free to connect with me for any doubts, any small thing, even if you have in your mind. Feel free to connect with me for that. Okay, then that's it for the day. Yes, yes, yes. Okay. Okay, so weightage is same. You have 100 marks for your CP1 paper 1 and 100 marks for your CP1 paper 2. And एक चीज अच्छा एक common question में बाकियों के लिए कि do you feel कि there is a need to pass in both of these subjects, और अगर मेरे मान लो I would say CP1 paper 1 में कम marks आ रहे हैं but paper 2 में ज्यादा marks आ रहे हैं तो वो उसको nullify कर देगा. तो is it important to pass in both the papers, or we just have to pass overall? What's the strategy that II or IFOA uses? Yes, overall. Yes, perfect. You have to pass overall. तो आपका बेसिकली 50% वेटेज है पेपर 1 की, 50% वेटेज है पेपर 2 की. और एक ये मिथ जो है कि पेपर 1 में हमें एसेट्स टारगेट होता है और पेपर 2 में लाइबिलिटीज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सेम आई वुड से सेम टॉपिक कैन बी टेस्टेड इन बोथ पेपर्स एज वेल. ये स्ट्रैटेजी है. मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि कौन से चैप्टर्स पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब कोई स्ट्रैटेजी रही नहीं. Had it been before 2019-20, it was easy to comment ki okay, you will be tested on these chapters in paper 1 and these chapters in paper 2, but now there's no strategy. You have to be very I would say you have to prepare your chapters in this manner ki okay, this can be tested in any of the exam, and it really does not make a difference. मैं आपको बता रही हूँ कि it is not different at all. What is the only difference is paper 1 में there can be multiple questions, multiple with multiple backgrounds. There can be a 5 marks question as well. You can have a 3 marks question as well. You can have a question as high as 20 marks as well. Paper 2 में there will only be 2 questions. Either 50-50 marks question, or I would say 45-55 या फिर 40-60. This is the weightage. There are 2 questions only. फायदा क्या होता है पेपर 2 का? आई पर्सनली फाइंड पेपर 2 बिट इजियर, बिकॉज पेपर 2 से क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है पहले क्वेश्चन के लिए, एंड ऑल योर प्रोसीडिंग क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड. बट होता क्या है पेपर 2 में, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर कोर रीडिंग. अगर आप IFO से प्रिपेयर कर रहे हो तो you should definitely, I will be taking all these questions in your technical discussion, but you should definitely, अगर अभी टाइम हो ना आपके पास, after the session definitely go through II exam जो September 2023 का था, and just have a look at both the questions completely out of core reading. मतलब एक तो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन आया था, उसके रिलेटेड रिस्क वगैरह कोई क्वेश्चन था, और एक बार ऐसी सेम क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया. मतलब पेपर 2 में वो एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं और उस पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं. पेपर 1 में मल्टीपल टॉपिक्स उठाते हैं और लिमिटेड स्ट्रेच होता है. तो sometimes students find paper 1 easy, sometimes students find paper 2 easy. It's up to you कि आपको वो particular topic कितने अच्छे से आते हैं. Basically paper 2 की यही strategy है कि हमें वो particular topic कितने अच्छे से आ रहा है. अगर हमें topic अच्छे से आता है तो paper 2 can be very easy. But अगर topic ही समझ नहीं आया तो वो 45-50 marks के question पूरा हाथ से छूट जाता है. सो स्ट्रैटेजी हमारी अलग रहेगी. पेपर 1 के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी, पेपर 2 के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी. There are separate sessions for paper 2 that I will be taking.
उसमें पे क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं आपको पहले से ही बोल दूंगी कि ओके यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड वेल बिफोर द क्लास, एंड इन द क्लास वी विल बी सीइंग कि कैसे उस बैकग्राउंड से रिलेटेड हमें जो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव ऑन दोज क्वेश्चंस. बट यस, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज it does not make a difference. Same thing you have to study for paper 1, same thing you have to study for paper 2. जब आप पास पेपर्स भी कर रहे हो तो ऐसा आपको मेजर डिफरेंस नहीं लगेगा. बहुत ज्यादा मिथ क्रिएट हुआ है कि पेपर 2 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, केस स्टडी आ जाता है. जैसे जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो इट वाज डिफिकल्ट एट दैट टाइम बिकॉज आपको 45 मिनट सिर्फ रीडिंग टाइम था आपके पास एंड यू वर नॉट सपोज टू राइट एट दैट टाइम. आप कुछ भी डिफरेंट नहीं है बिकॉज द मोमेंट यू गेट अ पेपर यू आर एबल टू राइट एंड यू कैन राइट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज कि एक बैकग्राउंड को मल्टीपल क्वेश्चंस में स्ट्रेच किया हुआ है. तो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है और उसी चीज के लिए जब जितना हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे फोकस करेंगे उतना इट विल प्रिपेयर यू वेल फॉर पेपर 2. सो पेपर 2 बेसिकली इज बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड पेपर 1 इज बेस्ड ऑन को रीडिंग टॉपिक्स. बट आजकल क्या है, को रीडिंग टॉपिक्स भी नहीं टेस्ट हो रहे हैं. इंडिया एग्जाम इज रिलेटिवली मच बेटर for CP1 and SPs compared to IFO exam. IFO exam is bit difficult to crack of both the I would say if I compare both these societies. So yes, but if you have your major exams exempted from IFO, आपको accordingly एक society choose करनी है. Why I'm saying India exam is easier because आप अपना language जो हमारी है वो हम better use कर सकते हैं, जो उनकी language है वो हम better understand कर पाते हैं. अभी IFO के exam का issue यही होता है कि at times we are not able to understand what they are exactly trying to say. और paper 2 में ये इशू नहीं है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड. You just have to understand that information, try to find out the hidden tips in that, and rest attempt your exam. So you will be able to get it better once we are doing technical topics discussion. But yes, in terms of studies, it will not make a difference to you. Okay, guys, then we are running short of time. We have our other class as well. So that's it for the day from my side. अगर आज की क्लास के कुछ और अभी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है आपको पूछने हैं तो फील फ्री टू पिंग ऑन इंस्टीट्यूट नंबर एंड दे विल जस्ट पास इट टू मी. Okay, then be prepared with your chapter 8 to 10 content lectures by next weekend. That is your target for this particular week. So अभी Saturday आपके पास पूरे 2 दिन